أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرضين روي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں باوز. پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہاں پر آ کر بیٹھنا، درود و سلام پڑھنا اور گریہ کرنا زہرائے مرضیہ منظور و مقبول فرمائے. سب مومنین کو دعاؤں میں یاد فرمائے. امام زمان علیہ السلام راضی خوشنود ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز بلند. کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات شروع کی تھی، آج اس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا اگر نسب میں دیکھیں تو حسین ابن علی سب سے عالی ہیں، جس کے ہر طرف سید سید رہتے ہیں. نانا ہے تو سید الانبیاء، باپ ہے تو سید الاولیاء، ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، بھائی ہے تو سید شباب اہل الجنہ. اگر طول میں دیکھا جائے پھر بھی یہ نسب عالی ترین ہے، اگر عرض میں دیکھا جائے پھر بھی نسب عالی ترین ہے. طول کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر باپ دادا سے شروع کریں آدم تک چلے جائیں اور نیچے بیٹوں کو دیکھتے آئیں، یہ تو واقعاً ایسا نسب ہے. اگر باپ سید المتقین ہے، امام المتقین ہے، تو بیٹا زین العابدین ہے. اگر باپ سید الاولیاء ہے، خاتم الاولیاء ہے، تو بیٹا سید الساجدین ہے. اگر عرض میں دیکھا جائے اس کو تو بہن وہ ہے جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، جو سید ام المصائب ہے، جو صابرہ ام المصائب ہے. بھائی ہے جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. عرض میں دیکھیں اس نسب کے مقابلے میں کوئی نہیں، طول میں دیکھیں اس نسب کے مقابلے میں کوئی نہیں. اور یہ تو وہ نسب ہے کہ علی سے لے کر آدم تک اور ادھر زہرائے مرضیہ سے لے کر حضرت حوا تک ایسا پاک و پاکیزہ نسب ہے کہ جس کی گواہی ملائکہ بھی دے رہے ہیں، جس کی گواہی زوار بھی دے رہے ہیں، جس کی گواہی تمام مومنین یہ دعا پڑھ کے دیتے ہیں اشہد انک کنت فی اصلاب بالشامخہ والارحام المطہرہ، کہ مولا ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تو آدم سے لے کر آج تک جتنے
सुलब से गुजरा है, सारे पाको पाकीज़ा थे, सारे अरहम पाको पाकीज़ा थे, इसके अलावा किसी की गवाही नहीं दी गई। सिर्फ आले मोहम्मद ही ऐसे हैं कि जिनके सब गवाही दे रहे हैं कि पाको पाकीज़ा से गुजर कर आए हैं। और कुरान मजीद है जो अल्लाह के रसूल की गवाही दे रहा है, और तो कल्लिबुका फिस्साजिदीन, क्या है मेरा महबूब नबी, तेरे जितने भी आबा व अजदाद आए सारे सजदा गुजार थे, सारे इबादत गुजार थे, सारे अल्लाह को मानने वाले थे, तौहीद को मानने वाले थे। तो इतना बड़ा खूबसूरत नसब, अजीब नसब किसी को नसीब ना हुआ। और हसब के मैदान में मैंने अर्ज़ किया था कि जहाँ पर चमकना बहुत मुश्किल था, वो मकाम पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मौला हुसैन इब्न अली ने हर मैदान में कदम जमा जमा कर रखे। ऐसी नमाज़ें पढ़ी जो सब नमाज़ों की लाज रख गई, ऐसी ज़कात दी जो सब ज़कातों के लिए क़यामत तक एक नमूने अमल बन गई। ऐसा जिहाद किया, अली इब्न अबी तालिब ने भी जिहाद की है। शुजा मशहूर है अली इब्न अबी तालिब, उससे बड़ा शुजा कोई नहीं गुजरा। और ये मैं अर्ज़ कर दूं आपके लिए कि हमारे तमाम आइम्मा शुजा थे, सारे आइम्मा मासूम थे, सारे आइम्मा आलिम थे। अगर इमाम हुसैन की जगह पर इमाम सादिक होते, यही कारनामा वो अंजाम देते। अगर इमाम हुसैन इमाम सादिक के मकाम पर होते तो वहाँ जो इमाम सादिक दर्स दे रहे इमाम हुसैन वही दर्स देते। ये अल्लाह की तरफ से तकसीम हो चुकी थी। किसी ने इमाम रज़ा से पूछा था ना कर कि मौला क्या आप हुज्जत खुदा नहीं है, तो आप दुआ के लिए इमाम हुसैन की तरफ क्यों भेजते हैं? इमाम जवाद खुद मरीज़ हुए, फरमाया किसी आदमी को ढूंढो जो मेरी तरफ से करबला जाए, दुआ करे मेरे लिए। फरमाते हैं रावी आया, रावी कहते मैं शख्स के पास गया, मैंने कहा मौला के लिए दुआ करने जाना है। इमाम सादिक से भी ये रिवायत है, मौला इमाम सादिक ने किसी से कहा जाओ किसी दोस्त को बुला ले आओ, मैं उसको अजीर करना चाहता हूँ, अजीर बनाना चाहता हूँ, ताकि जाए करबला जाकर मेरे लिए दुआ करे। रावी कहते मैं एक शख्स को लेकर आया, मौला ने कहा जाओ करबला मेरे लिए दुआ करो। जब ये जाने लगा थोड़ी देर बाद वापस आया, कहते मौला एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, उसका जवाब चाहिए। मौला ने फरमाया बता क्या सवाल है? कहते मौला आप भी तो हुज्जत खुदा हैं, आप भी तो ज़माने के इमाम हैं, आप भी तो खुद दुआ कर सकते हैं, तो मुझे करबला क्यों भेज रहे हैं? तो मौला फरमाते सही है मैं भी हुज्जत खुदा हूँ, हम सारे हुज्जत खुदा हैं, लेकिन हम एक रास्ता दिखाना चाहते हैं मखलूक को। हुसैन इब्न अली का इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कुल्लुना सफ़ीनत निजात, हम सारे के सारे सफ़ीनत निजात हैं, वलाकिन सफ़ीनतुल हुसैन असरा, लेकिन हुसैन का सफ़ीना बहुत तेज़ है। हुसैन इब्न अली का रास्ता बहुत तेज़ है। और अगर कोई पूछना चाहे कि सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता अल्लाह तक पहुँचने के लिए क्या है, दुआओं तक पहुँचने के लिए क्या है, तो मासूम यही फरमाएंगे कि हुसैन इब्न अली का रास्ता सबसे तेज़ है। हुसैन इब्न अली का रास्ता सफ़ीना सबसे तेज़ है। तो मौला ने वो हसब में उस मकाम पर पहुँचा अली का बेटा, उस मकाम पर आया अली का बेटा कि जहाँ पर बुलंद तरीन नसब अल्लाह का रसूल ये कहते हुआ नज़र आया कि हुसैन जहाँ पर तूने हसब को पहुँचा दिया है ना, वहाँ अल्लाह का रसूल ये फरमा रहा है अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि अगर हुसैन को देखना है हुसैन मुझसे है, हुसैन का नसब मुझसे है, लेकिन अगर हसब के मकाम पर आ जाएं तो मेरा हसब हुसैन से है। मतलब क्या है? आप इस हदीस का माना समझ आया? अल्लाह का रसूल फरमा रहा है अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लोग हैरान हो जाते हैं, ये तो सामने है कि नसब से हुसैन इब्न अल्लाह का रसूल से है, लेकिन अल्लाह का रसूल हुसैन इब्न अली से कैसी है? तो अल्लाह का रसूल यहाँ समझाना चाह रहे हैं नसब के लिहाज से अगर मैं न होता हुसैन का नसब न बनता, लेकिन हसब के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, इस्लाम को बचाने के लिहाज से अगर हुसैन होता तो मेरा किरदार न बचता। अगर हुसैन न होते